Bismillahirrahmanirrahim. With the bountiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficial, will start my presentation. The subject of my presentation is Introduction to Textile, and the topic is that needle punching technique for non-movements, and the second one, role of sampling department in the garment factory. Presented by Muhammad Mubin Yasin. Registration number is 1790-1228 and presented to Dr. Talha Ali Hamdani. And the contents of my presentation is that first topic is needle punching technique for non-movements. First we see definition of needle punching non-movements. Second we see production sequence of non-movements, and third we see needling process, and the last one is principle. In the second topic, role of sampling department in a garment factory. First we see introduction, and there are two type of sample in a garment factory. First, development sample, and second one is production sample, and last, role of sampling in garment factory. Next and next slide we see non-movements in general. In non-movements, first we see definition. Non-movement productions and yarn manufacturing productions and all steps of yarn manufacturing process are eliminated due to the reason of non-movements production. Non-movements for fabrics are comparatively cheaper and faster than the conventional production of weaving. Conventional production like weaving. The main advantages of non-movements is the speed, and the final fabrics is product. All yarn manufacturing preparation steps are eliminated due to the fabric production. It is itself faster than the conventional production like weaving. Non-movements is a sheet, web, or bat of natural and or man-made fibers, or the filament, excluding paper, that have not been converted into yarn and that are bounded together in different ways. It may also have other names such as shaped fiber, yarn-free fabrics. There are two names of non-movement fabrics like shaped fiber or yarn-free fabrics. There are three stages of non-movement production process: web formation, web bonding, finishing treatment. And the next slide is that production sequence of non-movements. As we described in the last slide, production of non-movements are comparatively easier and cheaper from the production of the fabrics like weaving. There are four steps of production of non-movement fabrics. Like first, we select the fiber, natural or man-made from the origin, and the selected fiber is converted into regular sheet or web. And in the third step, we bound together for the consolidation. And the fourth step, we apply the finishing on the selected fiber for the consolidation for the end use product. The application of non-movements production non-movements for fabrics is that EDANA stand for European Disposable and Non-Movements Association. These made of many different end-use products like face mask is an example of non-movements production, like hand gloves, like handbags, like home furnishing industries. These are all the example of non-movement productions. And the next slide is that the needling process, also known as needle punching, was developed as a new generation felt process as a method of forming textiles or fabrics, directly joining fabric by passing the need of yarn. The term non-movements was created as a result of this manufacturing technique, producing fabrics without knitting and weaving process. With the development of synthetic fabric, the technology became further established within the textile industry. And this picture shows the needling process. In the needling process, we have needle beam, and needle board with needles, stepper plate, pressing roll, fiber, fabrics, draw roll, bed plate, feed apron or web. And the next slide we see the principle of needle punching.
In needle punching method, fibrous web is allowed to pass under the bar containing multiple needles. These needles pass through the thickness direction of web, and it tangle the fiber to give strength to the fibrous sheet. The systematic diagram of the principle of needle punching is that पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फाइबर बिफोर, यानी कि नीडल पंच होने से पहले हमारे पास ये फाइबर, एक फाइबर है पंच बिफोर पंचिंग। और उसके बाद जो थर्ड वन है फाइबर अंडर एक्शन ऑफ बारबर्ड नीडल पंच, जो यानी कि बारबर्ड नीडल पंच के अंदर ये जो हमारे पास थर्ड स्टेप है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप में आता है हमारे पास फाइबर रिएक्शन आफ्टर रिलीज दिस फोर्स एक्ट ऑन अनदर फाइबर, यानी कि जो फाइबर ने जो नीडल ने पहले उसके ऊपर फोर्स लगाई और बाद में रिएक्शन के ऊपर जो फाइबर ने उसको नीडल को ऊपर की तरफ धकेल दिया। और अब इधर हम देखते हैं प्रिंसिपल। नीडल पंचिंग इज अ नॉन वूमेन प्रोसेस बाय विच द फाइबर मैकेनिकली टैंगल टू प्रोड्यूस नॉन वूमेन फैब्रिक बाय रिपीटेड पेनिट्रेशन ऑफ बारबर्ड नीडल। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो बारबर्ड नीडल है वो रिपीटेडली यानी कि ऊपर स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर फाइबर के ऊपर through a performed drive fibrous web. The needle barber is mounted on a beam which is given up and down. जिस इसकी जो मोशन है वो एक लूप के अंदर लगी हुई है, यानी कि लूप का मतलब है रिपीटेडली वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। मोशन बाय मीन्स ऑफ eccentric crank mechanism as an interlock thereby providing the mechanism strength. And the next topic we have role of sampling department in garment factory. रोल ऑफ सैम्पलिंग यानी कि हम अगर कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, जब तक हम अपने कस्टमर को, अपने यानी कि रिटेलर को उसका सैंपल नहीं दिखाएंगे, यानी कि उसका मॉडल नहीं दिखाएंगे, तब तक यानी कि हम कोई भी चीज़ को सेल नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट यानी कि सैम्पलिंग डिपार्टमेंट जो किसी भी गारमेंट फैक्ट्री का एक आप कह लें कि एक दिल है, यानी कि इसके बगैर आप, अगर आपने सारे काम कर लिया, फिनिशिंग कर ली, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अगर आपने उसको डिस्प्ले ही नहीं किया, यानी कि यूज़र को पता ही नहीं है उसने किस टाइप की प्रोडक्ट लेनी है, तो आपके यानी कि प्रोडक्ट बनाने का या उसको सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं आगे। इंट्रोडक्शन आया सबसे पहले, कह रहा है सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कहता है कि एक यानी कि बहुत एक यानी कि एक बहुत एक किसी भी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका बहुत अहम किरदार अदा है। क्या किस चीज़ के लिए, फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और बायर रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि एक बायर है वो आपको ऑर्डर करता है, उसको डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट जो है ना सैंपल की ज़रूरत होती है, यानी कि उसने देखनी होता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो कैसी है, या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो हमारे पास जो इंडस्ट्री के अंदर फ्यू टाइप्स की सैम्पलिंग होती है। तो नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल इन गारमेंट फैक्ट्रीज। वी सैंपल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वी हैव डेवलपमेंट सैंपल एंड प्रोडक्शन सैंपल। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट सैंपल। डेवलपमेंट सैंपल इनिशियल स्टेज ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, दी सैंपल आर मेकिंग बिफोर द प्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है डिज़ाइन सैंपल, फिट सैंपल, फोटोशूट सैंपल, मॉकअप सैंपल, साइड सेट सैंपल, अपीयरल अप्रूवल सैंपल, प्री प्रोडक्शन सैंपल। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिज़ाइन सैंपल। डिज़ाइन सैंपल में हमारे पास जो हमने यानी कि अपने किसी भी गारमेंट फैक्ट्री में, जैसे हम कह लें कि कोई सॉफ्टवेयर को हम डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बना के देखते हैं आया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस यानी कि इस डिज़ाइन का होगा। तो इसी तरह हमारे पास डिज़ाइनर होते हैं जो यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले एक प्रोटोटाइप टाइप का डिज़ाइन हमें तैयार करके देते हैं कि हमने इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। और फिट सैंपल जो है, जो डिज़ाइनर हमें जो डिज़ाइन तैयार करके देते हैं और उसका जो उनमें से जो डिज़ाइन हमें अप्रूव यानी कि पसंद आता है, या उसको किसी भी किसी जो भी डिज़ाइन को अप्रूवल मिल जाता है, उसे हम फिट सैंपल कहते हैं। और फोटोशूट सैंपल ये है कि हम किसी भी मॉडल को, यानी कि कोई भी हमने वो सैंपल तैयार किया, कोई मॉडल को हायर किया और वो मॉडल को यानी कि हमने उसकी पिक्चर्स यानी कि क्लिक की, फ़ोटोशूट किया और उसको हमने किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कहीं भी अपलोड कर दी पिक्चर, यानी कि आया कि हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाए, एडवर्टाइजमेंट सैंपल, उसे फ़ोटोशूट सैंपल कहते हैं। और मॉकअप सैंपल कहते हैं कि यानी कि हमारे पास है, यानी कि जो हमारे पास जो कस्टमर है, जो बायर है, वो हमसे ना कोई भी यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ले सकता है एज सैंपल के तौर पर, लाइक डैट स्लीव्स, कॉलर, पैंट शर्ट के इस तरह के ना
मुख्तलिफ पार्ट्स एज आ सैम्पल के तौर पर देखने के लिए ले सकता है। और उसके बाद हमारे पास आता है साइड सेट सैंपल। तो और इसमें हमारे पास डिफरेंट साइज़ होते हैं, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, डबल एक्सल हो गया। तो इसमें ये इस तरह के सैंपल आते हैं। अप्रूवल सैंपल होता है कि यानी कि इन सब सैंपल्स को इन सब सैंपल्स का अप्रूवल लेना। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्री प्रोडक्शन सैंपल। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन सैंपल। लास्ट स्टेज ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस बायर कैन नो द ब्लंक प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ अ गारमेंट्स इंडस्ट्री। तो यानी कि जो बायर है उसको यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री के जो यानी कि एक गोदाम पड़ा है उसमें प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके पास इस तरह का प्रोडक्ट्स पड़ेंगे। ऑनलाइन सैंपल है जो हमारे पास, यानी कि इसमें हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। किसी को अपने हमारी वेबसाइट बनी है, वेबसाइट के ऊपर हमको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगाते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेज से कलेक्ट की है। मतलब फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास एक था फ़ोटोशूट सैंपल, तो उसमें हमने किसी भी मॉडल को लेके कपड़े यानी कि अपने प्रोडक्ट की पिक पिक क्लिक की हुई और हमने एज अ सैंपल के तौर पे अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वास्ते और एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने किसी भी वेबसाइट पे लगाई है। और शिपमेंट सैंपल में ये होता है कि हमने जब किसी भी यानी कि हमने बायर जो हमारा जो ऑर्डर हो गया, हमने बायर को सेंड भेजने के लिए हमने ऑल एसेसरी देखनी है हमारे पास कौन कौन सी एसेसरी है, यानी कि उसमें बारकोड हो गया, पैकिंग एसेसरी, इस तरह की सारी एसेसरी यानी शिपमेंट सैंपल में हमने देखनी होती है। एंड द कंक्लूजन ऑफ द रोल ऑफ सैम्पलिंग गार्डनर कहता है कि सैम्पलिंग के बगैर सैम्पलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ टेक्सटाइल for confirming an export sampling play an important role. Buyer require different types of sample from different stages of the order process. By this a buyer can know the blank production condition of a garment industry। कहता है कि जो हमारे पास बायर है उसको यानी कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट तरह के हमको उसको सैंपल चाहिए होते हैं जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमने ये जाहिर होता है कि यानी कि सैम्पलिंग के बिना यानी कि जो हमारा सैम्पलिंग का डिपार्टमेंट है किसी भी गारमेंट फैक्ट्री के अंदर, उसके बिना हम अपने प्रोडक्ट को ना तो सेल कर सकते हैं और ना ही उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन नीडल पंचिंग एंड द रोल ऑफ सैम्पलिंग डिपार्टमेंट इन गारमेंट्स फैक्ट्री। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।